الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے عزیز صحافی بھائیو، آج پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں نے لاہور میں جناح ہاسپٹل کا دورہ کیا، وہاں ڈاکٹر صاحبان نے مجھے بتایا کہ پورے ہاسپٹل میں 12 صرف وینٹیلیٹر ہیں۔ اتنا بڑا جناح ہاسپٹل لاہور۔ تو میں اپنے مسرور کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا صحافی بھائیوں کے ذریعے کہ آپ نے ساری زندگی کمایا ہے، اگر آپ ہوں گے تو آپ کھائیں گے نا، تو خدا کے لیے آپ چند دن اور صبر کر لیں۔ دکانوں پہ میل ملاپ، بازاروں میں ملنا جلنا، منڈی میں، سبزی منڈی میں، اور جو جانوراں والی منڈی، جہاں کہاں بھی انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں۔ مسجد میں بھی جائیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ جو پورے پاکستان کے علماء کرام نے SOP بنائے ہیں صدر پاکستان کے ساتھ مل کر اور وہاں سائن کیے، ہم بھی انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی یہ بات ہے، فلاں کی، یہ انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے چاہنے والے چنوں کو کہوں گا، میرے چنوں، میری منوں، میرے مکھنوں، آپ سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں۔ یہ بس پریس کانفرنس کی وجہ سے میں نے اتار لیا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر ابھی میں نے استعمال کیا ہے، یہ لازمی کریں، اور گھر کے جہاں جہاں ہینڈل ہوتے ہیں دروازوں کے، وہاں سپرے کریں جہاں بار بار کسی کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے۔ ویسے تو اب آپ کے پاس ٹچ موبائل آ گیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ موبائل بھی ایک دوسرے کو مت پکڑائیں، اگر پکڑائیں تو پھر اس کو بھی سینیٹائزر ایسے ہاتھ لگا کر پھر کریں۔ تو میں اپنے ان دوستوں کے ذریعے تمام مسرور کی عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ حکومتی تدابیر پہ عمل کریں۔ یہاں حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس اتنے محکمہ صحت میں وسائل نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ملنا جلنا شروع کر دیں تو وہ سارے جراثیم کرونا وائرس کے آپ پہ منتقل ہوں، پھر آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ داخل ہو جائے ادھر ہاسپٹل میں۔ تو ہاسپٹلوں میں تو اتنی جگہ ہی نہیں، پہلے ہی بیڈ خالی نہیں ہے، پہلے ایک بیڈ پہ 2 مریض پڑے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، پولیس لڑ رہی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، پاک فوج کے ڈاکٹر، یہ صحافی برادری ساری فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، ہر ایک کے پاس جا رہی ہے دیکھو کو کہ یہاں کیا صحت کا مسئلہ ہے، یہاں کیا صحت کا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے ملک کی پولیسیوں کے ساتھ ہوں۔ میرا یہی موقف ہے کہ میں نے 5 جمعے نہیں پڑھائے، یہ رمضان کا برکت والا جمعہ، وہ بھی حکومتی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے اور انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے پڑھایا ہے، اور اس میں بھی میں نے یہی درس دیا ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں غریبوں کو راشن دیں، اور غریبوں کو درس دیا ہے کہ ایک دفعہ لے لیں تو دوبارہ نہ لیں، دوبارہ کسی اور حقدار کے پاس جائیں۔ اور خاص کر کے میں کہتا ہوں کہ محلے میں اگر 10 غریب لوگ ہیں، اگر ایک بھی امیر ہے تو وہ امیر 10 کو راشن پہنچا سکتا ہے، 3 4 5 ہزار کا تو راشن آ جاتا ہے مہینے کا۔ تو 5 ہزار کا راشن اگر ایک امیر 10 گھرانوں کو 50 ہزار میں بیچ دے، وہ اس کی زکوٰۃ بھی نکل جائے گی اور پوری گلی 1 مہینے کے لیے سیف ہو جائے گی۔ اور ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، رمضان کے حوالے سے جو رمضان اس کے حوالے سے دیکھیں، رمضان المبارک اللہ نے ایسا مہینہ بنایا ہے کہ جس میں اللہ نے شیطان کو لاک ڈاؤن کیا ہے۔ بندے تو اس دفعہ لاک ڈاؤن ہے نا، شیطان کو اللہ ہر سال رمضان میں لاک ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اس کے چیلے دنیا میں پھرتے ہیں، وہ شیطان کی جو ہے باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ رمضان میں شیطان چاند رات کو اس پہ خوش ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں لڑائی ڈلوائے۔ اس لیے رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے، رمضان برداشت کا درس دیتا ہے، رمضان اس بات کا تصور پیش کرتا ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیمرے کوئی بھی نہ لگے ہوں تو تمہارا یقین ہونا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تمام مسرور کے میرے چنوں کو، ٹک ٹاک ماڈل کو، میسنجر ماڈل کو، فیس بک ماڈل کو، ایمو ماڈل کو، یہ میرا پیغام ہے کہ میرے چنوں، ڈونٹ ٹچ می کرونا، ساڈے نیڑے نہیں آنا، ہاں کرونا گھر سے نہیں ہونا، کرونا باہر سے ہی آنا، اس لیے باہر مت جانا، گھر میں ہی رہنا۔ اس واسطے گھر رہو گے، سیف رہو گے، نہیں تو مختار والی گل ہی آ جانی جی۔ اس واسطے میرے چنوں
घर ही रहो। मदनी साहब, जो कादियानी को अक़लियत करार दिया गया, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई करें इस्लाम को। उसमें देखें, अक़लियत पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी है हम उनको सलूट करते हैं। अक़लियत का हक़ इस्लाम ने दिया है। अक़लियत ख्वाह वो ईसाई हों, मसीही बरादरी, ख्वाह सिख बरादरी हो, ख्वाह हिंदू बरादरी हो, यानी किसी भी मज़हब से जो अपने आप को डिक्लेयर करता हो कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, उसको अक़लियत कहते हैं। और मदीना तैयबा में हजूर ने उसको ज़िम्मी का लफ्ज़ दिया कि इनके हकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं। बड़ी इज़्ज़त की है इस्लाम ने अक़लियतों की, मगर हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हम ये नहीं कहते। ठीक है, हुकूमत ने अगर कहा है कि हम अपना फ़ैसला ये वापस लेते हैं, अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, वफाकी वज़ीर ने बयान दिया है, तो हम मुतमिन हैं। ये मुल्क एहतजाज का मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर कादियानी अपने आप को कहें कि हम गैर मुस्लिम हैं, तो बड़ी खुशी से उनको अक़लियतों में कमीशन में मेंबर बना लिया जाए। यही तो हमारा मसला है उनके साथ कि वो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं और हमको काफिर मानते हैं। हम मुसलमानों को वो कहते हैं ये मुसलमान नहीं, तो पहले वो अपने आप को, उनके जो बड़े हैं वो इकरार करें मीडिया पे कि हम गैर मुस्लिम हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरह दूसरी अक़लियतों को हकूक़ हासिल हैं, अक़लियतें इलेक्शन भी लड़ती हैं। ये एक साजिश है कि अक़लियतें जो हैं इलेक्शन भी लड़ सकती हैं। गैर मुस्लिम के लिए 2% कोटा भी है, गैर मुस्लिम के लिए इबादत गाह भी उसकी बन सकती है। वो उस चार दीवारी में अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकता है। वो चाहते हैं कि अगर ये अक़लियती रुकन बन गए तो इनकी मस्जिद में ये तबलीग भी कर सकते हैं, ये लोगों को अपने जाल में भी फंसा सकते हैं। हमारा हुकूमत से और जितने हमारे मुल्क के सलामती कौंसिल के इदारे हैं उनसे हमारी अपील है कि हमारा मुल्क एहतजाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और ख़ास करके ये हमारे जान से भी अज़ीज़ तर मसला है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी अपनी जान से अज़ीज़ हजूर को नबी मानो, अपनी जान से अज़ीज़ मानो, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें मोमिन मानता हूँ। तो ख़त्म नबूवत के मसले पे पूरी उम्मत मुसलमान यकजान है, और ख़त्म नबूवत के मसले पे कोई हुकूमत भी इस तरह का इक़दाम नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। और मुझे उम्मीद है खान साहब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ते हैं हर स्पीच में, और वो कुरान को फॉलो करोगे। और जो हमारे सलामती कौंसिल के इदारे हैं, पाक फ़ौज है, ये सारी इस्लामी फ़ौज है, और इन्होंने लीड करना है पाकिस्तान को और आगे लेकर निकलना है। हर आफत में देखें ना, ये अल्लाह की मदद है। हर मुल्क में कोरोना वायरस का कितना हमला हुआ है, मगर हमारे मुल्क पे इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। और आज अल्लाह के फजल से एक गरीब मुल्क जो है, इतनी आबादी वाला, इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि अगर ये बात डिस्कस भी हुई है तो ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए। हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर वो कादियानी कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, तो फिर उनको अक़लियत में शामिल करके बोर्ड के मेंबर। मैं पसरूर की आवाम को पैगाम दूंगा, मैंने आज जुमे में भी पैगाम दिया है कि आप किसी के साथ शेक हैंड ना करें, हाथ ना मिलाएं, घरों में भी ये बताएं, और जहाँ घर में बैठे होते हैं वहाँ भी फासला रख के बैठें। जहाँ भी बैठे, मैं भी फासले में बैठा हूँ, यासर के मेरे दरमियान फासला है, थोड़ा है मगर है, आप भी फासला रखें, रोज़ाना कपड़े तब्दील करें, और जब मवामी मकाम पे जाएं, मंडी पे जाएं, सब्ज़ मंडी पे जाएं, वहाँ आकर फ़ौरन कपड़े तब्दील करें, मास्क तब्दील करें। ये नहीं मास्क एक कोई 8 दिन ला करना है, इन्ने महंगा कोई नहीं है। रोज़ लोड करा सकते, बैलेंस पवा सकते, जानू नूं दे सकते बैलेंस, तो इकट्ठा 10 का 20 का मास्क नहीं ले सकते। हाँ जी, 2000 यासर इनायत साहब ने अपनी ये यूथ फोर्स के जवानों के साथ ये सारों में तकसीम किया है मास्क। आज जुमे में मैंने देखा तकसीम किए, और बड़े VIP मास्क इस तरह के तकसीम किए, सर्जिकल। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ के नसीब ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अजकल लोग मास्क ਨੂੰ भी हीरे ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ मैं अपने ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਨੋ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਤਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, खुदा वास्ते मास्क सस्ते कर दो, ਤੇ खुदा वास्ते ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ फ्री दवो। किसी ਨੂੰ बुखार ਹੋਵੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾਏ, ਪੈਨਾਡੋਲ फ्री दवो, फिर जनाब मास्क फ्री दवो। हाँ जी मेरे चन्नो, फिर कोरोना मुक लैन दो, फिर लोग तुहानू बैलेंस फ्री देंगे। अच्छा सर, दूसरे मुल्कों के जिन्हों को जब कोई उनका इवेंट होता है तो उसमें वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं,
अभी हमारा रमज़ान आया है तो ये 50% से भी साढ़ा ये पाकिस्तान च बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारे मुसलमान देख लें, सुबह को नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर मंडी जाते हैं, वहाँ 10 की चीज़ 100 की बेच के आके 10 मसीते फिर गले च हिस्सा पाउंदे ने। वाह बई वाह, बल्ले सुबह नमाज़ां पढ़नियां, रात नूं ज़ानां देनियां, फिर अल्लाह नाल हेरा फेरियां। वाह मुसलमान, अल्लाह नाल हेरा फेरी नहीं कोई कर सकता। मेरे चन्नो, खुदा के लिए ये मुनाफाखोरी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मदीना तैयबा में उनका 1000 ऊँट का लश्कर मदीना में पहुंचा शाम से। तो मदीने के सरदारों ने कहा कि कैद पड़ा हुआ है तो हम भाई से ले लेते। कहा भी हमें 1 ऊँट के बदले आपको 1 ऊँट देते हैं, यानी डबल मुनाफा देते हैं, तो आप हमें गल्ला दे दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिलता है। तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन इतना नफ़ा आपको दे रहा है। उन्होंने अपना सारा अनाज अपने गोदामों में लगाया और फिर ऐलान सुबह करा दिया कि मदीने के जितने गरीब हैं वो मेरे गले फ्री ले जा सकते हैं। तो उन्होंने सदागरों ने देखा कि वाकई अल्लाह से बढ़ के आपको कोई ज़्यादा नफ़ा नहीं दे सकता। मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुदा के लिए ये रमज़ान है, आप जो है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करें और मुनाफाखोरी मत करें। बाहर के मुल्क जो है वो कीमतें गिरा देते हैं। और मैं फ़ेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, सिख बरादरी का एक पेशावर का करियाने वाला है, उसने बोला कि मुसलमान मेरे पे एतमाद करते हैं तो मैं रमज़ान में उनसे नफ़ा ही नहीं लेता। तो हमारे मुसलमान जो कर रहे हैं इनको लम्हा फिक्री है कि हमारा दीन पूरी दुनिया में अखलाकियात से भरा हुआ है, ज़ाब्ता अखलाक है। मेरे नबी ने मुकम्मल मुसलमानों को जीने का और रहने का और चलने फिरने का तरीका बताया है। इसलिए ये मुनाफाखोरी न करें। लोग मर रहे हैं, आपको पैसे की पड़ी, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की कसरत ने, इतना हबस। मेरे बच्चों, दोस्तों, मेरे चाहने वालों, पसरूर के चन्नों, खुदा के लिए बकर मंडी में, सब्ज़ी मंडी में, खुदा वास्ते अल्लाह जानदा है, इज़राइल भी उत्थे वेख के हैरान हुंदा हुण कि ये केड़ी कौम है जिहड़ी आप आंदी आ बैल मुझे मार, मौत नूं आंदे ने आओ मैं मासी कहना। ओए अपनियां मासियां नूं तुसीं मासी नहीं कहिंदे ते मौत नूं मासी कह रहे। मैं सबको पैगाम दूंगा मेरे चन्नों, खुदा के लिए ये समाजी फासले भी रखें और इन्हां दिनां 'च विआह शादी भी ना करो। जे जिंदगी रही तो हो ही जानी इंशाअल्लाह। ओए कुआरे मुंडे इन्हां दिनां 'च विआह नहीं कराउणा, ठीक है जी, सारे कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।